لیکچر نمبر 5 اسی چیپٹر کا جو کہ ڈیموکریسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. واٹ از ڈیموکریسی اینڈ وائی ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے بارے میں ہم نے ڈیفینیشن سمجھی اور ہم نے اس کے کچھ فیچرز بھی سمجھے ہیں, اور فیچرز کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, کیس اسٹڈیز بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے کل پڑھا تھا زمبابوے کے بارے میں. یہ اسی کو ہم اب انالائز کریں گے کہ زمبابوے میں کیا کیس تھا. زمبابوے کے بارے میں جیسے ہم نے دیکھا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی وہاں پہ, اور ڈیموکریٹک طریقے سے وہاں پہ گورنمنٹ نہیں چل رہی تھی. اسی کو ہم آج آگے پڑھیں گے. دا ایگزامپل آف زمبابوے. زمبابوے کی جو ایگزامپل ہم نے دیکھی, پاپولر گورنمنٹ کین بی انڈیموکریٹک. ہم نے کیا دیکھا سر, وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ تھی جو کہ پاپولر تھی, ہے نا سر. پاپولر کیوں تھے؟ کیونکہ اس نے انڈیپینڈنس میں بڑا ہی رول جو ہے پلے کیا تھا, ہے نا. تو یہ جو مگابے ہیں وہ بڑا پاپولر تھا لوگوں میں, تو اس نے ایک پاپولر طریقے سے ایک گورنمنٹ بنائی تھی. بٹ پہلا پوائنٹ ہے کہ پاپولر زانو پی ایف کی. تو یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہے سر, جو پاپولر گورنمنٹ ہے نا, جو گورنمنٹ لوگوں میں بڑی مشہور ہے, ٹھیک ہے نا, جس گورنمنٹ کی لوگوں میں ایک بڑی امیج پہلے سے بن چکی ہیں, وہ بھی ان ڈیموکریٹک ہو سکتی ہیں, جیسے ہم نے زمبابوے میں دیکھا. تو دوسرا پوائنٹ, پاپولر لیڈرز کین بی آٹوکریٹک. جو پاپولر لیڈرز ہیں, پاپولر لیڈرز مینز جن کو لوگوں کا سپورٹ ملا, جو ایک ٹائم پہ ایسے کام کر رہے تھے جو لوگوں کے ہت میں ہو, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. صرف اگزامپل, یہ جو مگابے ہیں یہ بہت ہی اچھا لیڈر تھا پہلے, جب اس نے بلیکس کے لیے انڈیپینڈنس کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کی, اور فائنلی ہی گاٹ انڈیپینڈنس فرام دا وائٹ مائنارٹی, ہے نا. تو یہاں پہ اب ایک اور بات سمجھ آئی ہمیں, دیکھو سمجھ لینا بیٹا, ایک اور بات یہاں پہ ہمیں سمجھ آئی. اگر کوئی پاپولر لیڈر بھی ہے, دیٹ مینس پاپولر لیڈر انڈیا کی بات کریں گے, مہاتما گاندھی جی, ہے نا, اس نے اک پاپولر لیڈر. پاپولر لیڈر بھی آٹوکریٹک ہو سکتا. آٹوکریٹک مینس جو منمانی حساب سے حکومت چلائے گا, ٹھیک ہے نا, وداؤٹ کنسلٹنگ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ وداؤٹ کنسلٹنگ اینی باڈی. آٹوکریٹک, ٹھیک ہے نا. یا ایسے بولیں گے جو ڈیسپوٹزم چلا رہا ہوگا. آٹوکریسی جو دیٹ مینس اپنی مرضی کے مطابق رول چلائے. تو پاپولر لیڈر بھی آٹوکریٹ ہو سکتے ہیں. دیکھو بھائی, پاپولر لیڈر بھی آٹوکریٹ ہو سکتے ہیں. نا آٹوکریٹ مینس جو کہ اپنے من کے مطابق ہی رول چلائے, وداؤٹ ریزورٹنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, وداؤٹ فالوئنگ رولز اینڈ ریگولیشنز آف دا کنٹری. It's important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. ہاں, یہ بات تو صحیح ہے کہ سب سے پہلے ڈیموکریسی میں ہم کیا دیکھتے ہیں سر, کیا الیکشنز ریگولرلی ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں تو ٹھیک بات ہے. تو ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ چلو بیس پوائنٹ تو آیا, لیکن الیکشن کرانا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جن میں الیکشنز ہو رہے تھے مگر ان کا رزلٹ فیئر طریقے سے نہیں نکلا تھا. ویری گڈ. تو یہاں پہ یہ بھی امپارٹنٹ بنتا ہے کہ سر ہم الیکشن سے پہلے کی سچویشن دیکھیں اور الیکشن کے بعد کی سچویشن دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا سچ میں ڈیموکریسی وہاں پہ ہے کہ نہیں. اس چیز کو ایکسپلین کریں گے اور لاسٹ میں لکھیں گے کہ رول ہے کیا. رول ہے A democratic government rules within the limits set by the constitutional law and citizens' rights. Democratic government وہ government ہوتی ہے جو کہ rule کرے گی within the limits of the constitution. ٹھیک ہے نا. وہ کس طریقے سے democratic government اسی government کو بولیں گے چاہے وہ unpopular leader ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ یہی چیزیں کر رہے ہیں نا, then we can claim that it's democracy. کرنا کیا ہے, اس کو دو چیزیں کرنی ہیں. One, to follow the constitution and to protect the citizens' rights. دو چیزیں ہوں گے نا, so we can claim it's democracy. ٹھیک ہے نا. For democracy there are two most important things for it. ٹھیک ہے نا. For achieving the realistic democracy, so the government should rule within the limits set by the constitution and to protect the rights of the citizens. دو چیزیں سمجھ لینا, یہ دو امپورٹنٹ ہے, citizen rights اور constitutional framework کے انڈر میں ہی کام کر لینا. اتنا آیا سمجھ؟ موو کرے. تو ایک اور اس کے جو سارے فیچرز ہم دیکھیں گے. اب ہم نے کل ملا کے یہ سارے فیچرز پڑھے جو کہ ہر ایک کو پتہ ہونے چاہیے, پلس فیچرز تو یاد ہوں گے ہی ہوں گے, اس پہ تو میں چھوڑوں گا نہیں. پلس ایکسٹرا چیزیں یہ آپ کو کرنی ہے. ود ایوری فیچر یو ہیو ٹو ریممبر دا کیس اسٹڈیز آف کنٹریز. آ رہا ہے میرا سمجھ؟ ہر ایک
फीचर के साथ मैंने केस स्टडी भी कंट्री का पढ़ा, जैसे मैक्सिको का हमने देखा, पाकिस्तान का, सऊदी का देखा, जिम्बाब्वे का देखा, है ना। तो हर एक के साथ आप ये केस स्टडी भी याद रखोगे। तो सिंपल वे में डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये डेमोक्रेसी वो कंट्री है जहाँ पे रूलर को इलेक्ट लोगों से किया जाएगा, और इसमें फिर इसके फीचर्स, ये 4 फीचर्स मेन फीचर हैं। पहला जो कि हमने इससे पहले भी देखा कि रूलर्स जो इलेक्ट अब हुए हैं ना, वही मेजर डिसीजंस लेंगे। परवेज़ मुशर्रफ की तरह नहीं कि वो रूलर था ही नहीं, उसको किसी ने इलेक्ट किया ही नहीं था, बट स्टिल उसने बहुत मेजर डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड किया था। नाउ दूसरा चीज़ यहाँ पे, इलेक्शंस ऑफर चॉइस and fair opportunity to the people to change the current rulers। इलेक्शंस में क्या होना चाहिए, एक ऐसी चॉइस मिलनी चाहिए, रियल एंड फेयर चॉइस मिलनी चाहिए लोगों को, जिससे वो सच में एक जो है रूलर को चेंज कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि मैं वोट डालूंगा चेंज करने के लिए, वो वोट उसको मिलेगा ही नहीं जिसके लिए मैंने किया था, दैट्स नॉट फेयर इलेक्शन। आवाज़ समझे। अच्छा, तीसरा पॉइंट, दिस चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। अगर जो डेमोक्रेसी की बात करेंगे सर, वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी है। क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसका मतलब क्या है सर? जो हम राइट टू वोट दे रहे हैं, किनको? सबको। ये सबको मिलने चाहिए, मेल हो, फीमेल हो, अमीर हो, गरीब हो, जैसे मैंने कल बोला, सब लोगों को मिलना चाहिए इक्वल बेसिस पे। इक्वल बेसिस पे मतलब एक वोट, एक पर्सन, एक वोट, एक वैल्यू, दैट्स इक्वल बेसिस। आया समझ? नाउ मूव टू दिस फोर्थ फीचर विच इज द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। तो दूसरा क्या होना चाहिए, जो अभी हमने कंप्लीट किया था, जिम्बाब्वे की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे हमने देखा था कि गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए सर, एक लिमिटेशन होनी चाहिए, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन होनी चाहिए। कल हमने जो मैंने बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक द पाथ एंड वी कैन से इट इज़ द लिमिटेशन फॉर द गवर्नमेंट विद इन विच अ गवर्नमेंट हैज़ टू रूल द कंट्री, है ना। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो विद इन द लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, दैट मीन्स रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, जो उस कंट्री में होंगे, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट्स, ये चीज़ें होनी चाहिए। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स फॉर द डेमोक्रेसी। अगर ये फीचर्स सच में वहाँ पे हो रहे, देन वी कैन क्लेम एंड वी कैन से दैट इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इसके अकॉर्डिंग इंडिया को जज कर लेना, क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। नो प्रीवियस को क्या करना है, दुनिया आगे चल रहा है, हम पीछे जाएंगे, बड़ी गलत बात है, मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा। तो ये वही है ना बेटा, जो आपने 1 by 1 फीचर्स लिखे ना, ये सम अप में वही है, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा है विद केस स्टडीज़, ठीक है। ये लिखना है, it is not magical solution for all the problems। हाँ, यहाँ पे देखो, पहले समझो फिर लिखो। डेमोक्रेसी क्या है? क्या हर एक कंट्री में हम देखते हैं कि इश्यूज़ होते हैं, है ना। कभी गरीबों को पीटा जाता है तो कभी अमीरों को, है ना। कुछ भी हो सकता है डेमोक्रेसी में, एक कंट्री में कुछ भी हो सकता है। इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स होंगे दिए, है ना। There may be issues and the problems in any country of the world। उसका सोल्यूशन क्या है? इंसान जगह संभ्या मारते हैं संदावा रेमेडी होता है ना। अगर किसी कंट्री में प्रॉब्लम होगा, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, ठीक है ना सर, उसका सोल्यूशन क्या है? क्या ये डेमोक्रेसी है जो सब चीज़ों के लिए दवा है, सब मर्ज का एक ही दवा, दैट्स डेमोक्रेसी? क्या ये है? नहीं। क्या ये ऐसा जादू है कि ये सब चीज़ें ठीक करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी है क्या? इट इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन। ये जादू का जो जादू की छड़ी नहीं कि ऐसे फेरा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाउ द डेमोक्रेसी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट द क्वेश्चन वी फेस इन द रियल लाइफ इज़ डिफरेंट। हम देखेंगे कि ये आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स सर इसके जैसा है ही नहीं कोई। सही बात है, अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे रियल लाइफ में आते हैं जो कि डेमोक्रेसी से हट के हैं, डिफरेंट है। उन चीज़ों का सोल्यूशन डेमोक्रेसी में नहीं होता है।
ठीक है ना, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो डेमोक्रेसी की वजह से सॉल्व ही नहीं होते हैं. यहाँ पे आप देखो, इज डेमोक्रेसी बेटर दैन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर अस फॉर चूज. हाँ देखो, मैंने अभी बोला गवर्नमेंट चलाने का जो मेन थीम है ना कंट्री का, वो क्या है? लोग खुश होने चाहिए. चाहे डेमोक्रेसी से खुश करो उनको, चाहे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से खुश कर लो, लेकिन लोगों के लिए ही काम कर लो, ठीक है ना. तो ये बोलता है अगर हम अब सब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स को देखेंगे, बीच मोनार्कियल सिस्टम, डिक्टेटर सिस्टम और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे इन तीनों में से पहले, तो मैं ये बोलूँगा सर, इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट है. अगर चीज़ सोल्यूशन सबका नहीं है, बट इन सब फॉर्म्स में से अगर मैं बेस्ट अब ढूंढने की कोशिश करूँगा, सो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों है? मोनार्की वगैरह नहीं. मोनार्की नहीं है, क्योंकि जितने राइट्स डेमोक्रेसी में लोगों को मिलते हैं ना, इतने किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलते हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कम कैसा राइट्स आसान. मैं फिर से बोलूँगा, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वही कामयाब है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे और राइट्स दे. लेकिन यहाँ पे समझना है, जब मैं सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को देखता हूँ, मोनार्की को देखेंगे, डिक्टेटरशिप को देखेंगे और डेमोक्रेसी को भी साथ में देखेंगे, तो हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं सर, डेमोक्रेसी ही एक ऐसी ये है गवर्नमेंट जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन देती है इसका, और जिसमें लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन मिलती है. तो हम, अगर मुझे बोला जाएगा कि आप कौन सी वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ डेमोक्रेसी. आया समझ? बट अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या मैं वन तो कि यिथ कन ते बस वनान, तो एज पर इस्लाम डेमोक्रेसी ठीक नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना. शरिया लॉ वनान शरिया लॉ इज़ बेस्ट. लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें जो हम पढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेटिक फॉर्म इज़ द बेस्ट. वुच इस्लामस मज मा मोनार्कियल सिस्टम, यही तो है ना प्रॉब्लम, जो इस दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. इस्लाम में मोनार्कियल सिस्टम नहीं था, इस्लाम में था खलीफा, खिलाफत सिस्टम. खिलाफत और मोनार्कियल फॉर्म में फ़र्क है, कन्फ्यूजन है ना. हाँ, जुस बादशाह बनना सह इस्लाम एक्सेप्ट करान क्या, बादशाह इस्लामस मज आमुत क्या. बादशाह नावई गो यह कर पन लाइफ कित बस है ना वन, गो ना शिरक. बेस बादशाह दुनियास मज आसान, उसका लाइफ स्टाइल ही कुछ अलग. खलीफात आम लोगों जैसा था, यित कन आम लुक हाक बत खान सह खान, यित आम लुक पलो लगान छनमित तम सह लागान, ठीक है ना. सो जस हम यित वनो कह बिल्डिंग चूकदर क्या तमिस बिल्डिंग थवन नजर, अत मा चूर मा गई. खलीफा जस्ट लाइक दैट, सह सरकारी खजानस नजर थत, पानस रुपये तक खान तमिस तुत यूत तमिस पे आसा. खलीफा 4 खलीफा थे ना, ये मेन जिन्होंने स्टार्ट किया था. अगर इस वनो अड़ खलीफ तम अक टाइम तुझे खलीफ क्या पानस लालच करान जहन ते पन्ने खतर खलीफ रोजान. एक बार जो एक खलीफा को बोला गया कि उसकी बीवी ने बोला एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं है याद किस वाले खलीफा को, बोला गया कि सर पगह ईद, सबके बच्चों के लिए जो नए कपड़े होंगे वो होगा, ये होगा. आप देखो, आप अमीरुल मोमिनीन हो, आप खलीफा हो, ठीक है ना, मान तो प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है ना. तो आपका जो खुद का बेटा वो रो रहा है कोने में, वो बोल रहा है कि मेरे लिए कपड़े नहीं. ईज दो ना बचन शो, सो पैगम्बर सुन बच या सो आम इंसान बच्चे अमिस बिचारस यह बचपन युत, यह नयन चीज़न लगान पत आस सो पे पे गिंदस 2 मिनटन त्रायस होकुन यल, मगर आसन गछ, ठीक है ना. बच्चे सुन नेचर युत. उसने बोला उसको कि सैलरी तो मेरी आई, वो तो मैंने ख़त्म की. सैलरी को उस टाइम वजीफ़ा बोल रहे थे, जो कि सरकारी खजाने से उसको मिलता था. बोला तो अब तो मैं नहीं ला सकता. इसकी बीवी ने बोला इसको कि चलो ठीक है, नहीं ला सकते हो, अब मैं एक सोल्यूशन देती हूँ, हम इसके लिए कपड़े ला सकते हैं, आप नेक्स्ट मंथ की एडवांस सैलरी ले लो. उस टाइम पे नहीं लेना. बोला ठीक है मैं लूँगा, ये है कागज़, आप मुझे लिख के दो, बस नेक्स्ट रेत जिंदगी. ये वहाँ समझ, मुझे लिख के दो नेक्स्ट रेत आज बह जिंदगी, बह रोज़ जिंदा तोतनस तान हेक दित, तब मैं सैलरी लूँगा ना ये बह काम कर.
तो आपको पूरा भरोसा है कि मैं नेक्स्ट मंथ तक भी ज़िंदा रहूँगा, लिख के दो मैं लाऊँगा। वो लिख के देती? तो बोला नहीं, फिर हम नहीं ला सकते। वैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ऐसे जा रहे थे, अब मैं बोल रहा कि खलीफा और बादशाह तस्मस क्या फ़र्क है, जा रहे थे कि तो एक दिन उसकी बीवी ने उसके लिए हलवा तैयार किया, हाँ, मुदर हलवा। हम तो बस ये कैसे आ गया? नाम क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसकी बीवी आई, उसने उसको हलवा पेश किया। नाम नहीं मुझे पता है, यूँ तो वास्ट अत मज़ करा, लेकिन ये जो है ना वाक़ात मुझे इधर हिट करते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी होती। तो बस ये कहाँ से लाया? दोपनस अगर मेरी सैलरी इतनी है तो उस सैलरी में से हलवा थोड़ी बनेगा, अच्छी पका हाँ बट हलवा एक्स्ट्रा चीज़ क्या कहाँ से आया? दोपनस ठीक है अमीरुल मोमिनीन, जब आप सैलरी मुझे देती थी ना, मैं हर दिन थोड़ा बचा रही थी। दैट मीन्स अगर रुपये गसान खर्च, मैं कुछ पैसे बचा रही थी ताकि एक दिन हम कुछ पार्टी करें, ठीक है ना। दोपनस ठीक है लाओ हलवा। वहीं पे लिखा, अपने जो अकाउंटेंट थे सरकारी ख़जाने के, बोला कि इतने पैसे रोज़ के मुझे कम कर लो, क्योंकि इसके बगैर भी मेरा गुजारा होता है, ये चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था, अब आज के बाद ये मुझे नहीं मिलना चाहिए। ये है खलीफा। इससे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है कहीं पे? हो सकती है ना। सिक्योरिटी गार्ड ना क्या, एक दिन मुल्क सदर ये बेकिस मुल्क के सदरस मिलान क्या रेड कारपेट, यप अड़ वायान हो डोल, यप अड़ माल तरान, जैसे एयरपोर्ट पे देखते हो। एक दिन ऐसे रोम का कोई आया, उसने बोला कि मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, हज़रत उमर फारूक से। वो मस्जिद नबी में आया तो बोला कि कौन है आपका ये बादशाह के जिसने इतने बड़े ज़मीन पे कब्ज़ा किया, इस्लामी हुकूमत फैलाई, इतने हिंदुस्तान 10 टाइम करो तुम तीचा ज़मीन अमिस अंडर, अम कुछ हेड, ये क्या गस आसन, अमिस कसा सिक्योरिटी गस। तो बस पता नहीं वो कहीं पे ऊँट लेके गया है। जब वो गया तो उसने एक पेड़ के सामने अकेले में इसको पाया और सोया था। बोला कि आप इतने बड़े ज़मीन के इस सल्तनत के मालिक और अकेले में बैठे हो, डर भी नहीं किसी का कोई मुझे मारेगा नहीं। बोला मुझे इसलिए डर नहीं है, मैंने किसी को बेगुनाह कभी नहीं मारा है। आपके बादशाह इसलिए डर रहे, इसलिए सिक्योरिटी में रहे, वो बेगुनाह किसी को कत्ल कर रहे हैं। दैट्स वाई ये है ना। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इस्लाम दे रहा है, ठीक है ना। चलो जुमा इस्लाम तो थोड़ा जिक्र तो वहाँ वो यहाँ पे भी वाई डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। तो आप देखेंगे, अब दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस, तो हम बोल ही गए। रुको, डिसएडवांटेजेस में आई थिंक वी मिस समथिंग हियर। सबसे पहले एडवांटेज पढ़ेंगे, इसके बाद डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, है ना, ठीक। तो फिर भी आप 1 मिनट रुक लेना, मे बी मैं आपको ऐसे ही डिसएडवांटेज बोलूँगा। इसमें एक पेज मिसिंग है, वह में सोरे गोमुत यूता याद मे पा क्या मिसिंग, वो मैं एडवांटेजेस ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी पढ़ने ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। पता वनो ना तो क्लेम करो सर ने नहीं पढ़ाया था। फीचर्स ओके, चलो पहले ही डिसएडवांटेज इधर साइड में पढ़ेंगे, इधर ठीक है ना। तो देखो डिसएडवांटेज, देख लेना बेटा, डिसएडवांटेज हम पढ़ रहे हैं। डिसएडवांटेज का मीन्स, पहले इसको हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं, एंड कॉन्स भी बोल सकते हैं। 3 चीज़ें बोल सकते हैं, कॉन्स, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान क्या है इससे, ठीक है ना। तो लिखो सबसे पहले, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। पहला पॉइंट, leaders keep changing in democracy, which leads to instability. लिखो बेटा ये सारे
डिसएडवांटेज, तो इसके बाद इसको डिस्कस भी करेंगे इस वाले पॉइंट को. ये वाला पॉइंट लिखो, आप लिखो फसिया ये डिसएडवांटेज. मैं पहले वो सब पिछला लिखूं फिर इससे उतारूं. अच्छा. आपने लिखा है बाबर इनस्टेबिलिटी. फिर हम कैसे बोल सकते हैं डेमोक्रेसी बेटर, क्योंकि जो वो डिक्टेटरशिप थी उसमें तो सेम ही रह रहा था ना चाइना में. डेमोक्रेसी कैसे बेटर है इन चीज़ों से, पहले उन चीज़ों को देखिए. दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए ना. डिमेरिट हैं लेकिन मेरिट. इनस्टेबिलिटी बिलिटी. ओके सूद भी वना एल गई मुशिद सर गलत कर. तो वना ये क्या है, सीधे बोला सर एल भी है स्टेबिलिटी. देखो डेमोक्रेसी में हमें पता है सर लीडर्स कीप चेंजिंग. After every 5 years or 6 years, there are regular elections in democracy. So there may be chances of changing of the leaders. Say for example, today we have Prime Minister Modi ji, and in next election it may be Rahul Gandhi ji. ठीक है ना. Before that it was Manmohan Singh ji. Yes, उतरे मूद. ठीक है ना. तो वो 2018 तक थे ना. नहीं वो थे 2009 तक. 9 तक. हाँ 9 तक. तो इसके बाद 9 तक कि 14 तक 14 तक हाँ मनमोहन सिंह जी 14 तक पत मूद से अत क्या फिर कमिस. लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, और साथ में उसकी नॉलेज अगरचे बोलता वो कम था. हाँ चेंज क्यों किया? लोगों की मर्जी. डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ द पीपल, है ना. जब यहाँ पे कोई मतलब उसको वोट डालना, ये दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़. मैं समझाऊंगा इसको, के बाद ये क्या चीज़. वो समझेंगे लाइव के बाद. अब देखो इधर, तो पहला पॉइंट, तो डेमोक्रेसी में लोग लीडर्स चेंज होते रहते हैं. इससे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को समझ लेना. से फॉर एग्जांपल कोई लीडर है, उसने बोला कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, से फॉर एग्जांपल उसको ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट, ठीक ना. अत लगन मगर 20 वरी बनानस, कस वरी 20 वरी. चलो इसने यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन 5 साल के बाद इलेक्शन हुआ तो इसको ख़त्म किया गया. प्रोजेक्ट पे होना तथी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. डेमोक्रेसी में ये चीज़ फॉल्ट है कि लीडर अगर कंटिन्यू रहेगा ना, तभी वो कोई गोल कंप्लीट कर पाएगा. तभी स्मार्ट सिटी, तभी वो गोल, हाँ तभी वो गोल अचीव कर पाएगा. स्मार्ट सिटी में बगल में देखो एक पुल बनाना था, पुल नहीं बना पाए, और लास्ट में 5-8 बंदे उसमें गिरे, बच्चे स्कूल बैग लेके वहाँ पे मरे. स्मार्ट सिटी का फ़ायदा क्या? स्मार्ट सिटी बाहर वालों को दिखाना है लाल चौक बस लाइट्स लगा के, अंदर जाओ ना थोड़ा लाल चौक के इस साइड 5-7 किलोमीटर ही दूर है, वहाँ पे पुल नहीं पहुँचना पे, वहाँ जबान खोलें, वहाँ पे पुल नहीं बना पाए. वाला है मैं अर्जन शरात खलास में 8 लोग स्कूल बैग लेके डूब गए वंदस में. मुझे पारस वंदस में क्या स्कूल विंटर ट्यूशन के लिए जाते, बारिश थी उस टाइम, उसको पता है. नाव डिबे सबको पता है, नाई मजे देखो क्या, उनको इस साइड से उस साइड जाना होता था. उसने गवर्नमेंट उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था एक पुल बना के दो, ब्रिज. वो कर सकते थे. अब वो बना रहे हैं. उस टाइम कोई गवर्नमेंट ही नहीं था, अब वो बना रहे हैं ना, मे बी स्वास्थ्य कंप्लीट थी गवर्नमेंट, लेकिन उनकी जान थोड़ी आएगी वापस. सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन्स राइट्स, जो मैं अभी बोल रहा था. उसका राइट ये है कि उसकी जान चली गई, कौन देगा? अब वो पैसे देंगे, से फॉर एग्जाम्पल पैसों से थोड़ी जान आएगी. जो कुंभ मेले में ये बेचारे गए थे सनातन धर्म के लोग, वहाँ पे कुछ जो कि इनका रिलीजियस अकीदा है, लेकिन वहाँ पे भगदड़ हो गई. पता था भगदड़ मीन्स लोग मर गए, तत गई छाग लुकन यम बड़ तिम बैठ बेचार, तिमन खत पे तिम मूद, कितने मर गए पता भी नहीं. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वहाँ पे 10 करोड़ लोग आए हैं, तम खतर था इंतज़ाम, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो कांग्रेस की, तो गवर्नमेंट किस काम के लिए? फिर अगर लोगों के सहायता के लिए गवर्नमेंट नहीं बैठी है तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है ना. और इवन अब वो डेटा भी नहीं दे रहे कि कितने लोग मरे. हिंदू बेचारे ऐसे ही मर गए, तुम बुज़ुर्ग बस जो पैरों तले रूंद लिया गया उनको. इंसान ही हैं, चलो धर्म दूसरा है,
धर्म को एक मिनट छोड़ो इधर, लेकिन ह्यूमैनिटी के बेस पे बेचारे मर गए. किसी की माँ गायब तो किसी का बाप गायब, किसी को बोले कि उस हॉस्पिटल में ढूंढो तो किसी को. ह्यूमैनिटी के नाम की चीज़ है कि नहीं है? तो कौन सी डेमोक्रेसी और क्या, कौन सी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की. अब देखो इधर, अब देखो, अच्छा दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, ये पहला पॉइंट समझ आया. दूसरा पॉइंट, अभी आप उठोगे आप पढ़ाओगे. सुत्या औषना क्या पर होता है. दूसरा, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल. नहीं ये नहीं है. दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज नो स्पेस फॉर मोरालिटी. डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. सही बात है ना? All about political competition. Democracy is all about political competition. इतना आया समझ. पॉलिटिकल कंपटीशन, एक पार्टी बोल रही कंपटीशन में मैं ही आगे निकलूं और दूसरे, इससे क्या होता? मोरलिटी रहती ही नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं. आ रहा है समझ? सो देयर इज़ नो स्पेस फॉर मोरालिटी. इखलाक नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं होती है उनमें. आप देख सकते हो. देयर इज ना बनाई दिन एग्जाम्पल, नो स्पेस फॉर, है ना, स्पेस फॉर मोरालिटी. ये है इसका दूसरा एक डिसएडवांटेज. ठीक है बेटा. अब तीसरा पॉइंट, तीसरा डिसएडवांटेज, ये आया समझ दूसरा भी. हाँ, तीसरा आप इसमें लिखोगे, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज. शॉर्ट में लिखेंगे, मेनी कंसल्टेशंस लीड्स टू डिलेज. अगर कोई मोनार्कियल सिस्टम है, वहाँ पे सारा पावर किंग के पास है ना. तीसरे पॉइंट को समझ लेना, मैं पहले पढ़ूंगा, खबर हुआ था ये. मेनी कंसल्टेशंस लीड्स टू डिलेज. शॉर्ट में लिख रहा हूँ. अगर कोई मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किंग के पास सारा पावर होता है. ठीक है ना. किंग को ज़रूरी नहीं है कि वो पहले किसी से मशवरा करे, क्योंकि सारा पावर किसके पास? किंग के पास. सो दैट चलो बाबरस तो गो मक लो, है ना. कंसल्टेंट नहीं, अदालत भी वही, सब कुछ वही. तो इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेसी में पहले कमेटी को बिठाया जाता है, वो अपना रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें 1 साल तक लगता है, उससे भी ज़्यादा कभी कभार. फिर वो कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है गवर्नमेंट के आगे. गवर्नमेंट फिर उसमें से चूज़ करते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. देन आफ्टर दैट पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं, फिर वोटिंग होती है, फिर होता है. तो दैट मीन्स अगर कोई रूल बनाना होता है ना, लड़ाई नहीं, वो अच्छे से बोलते हैं. अब हाँ वही समझ लो. अब मसला ये है कि इसमें सर बहुत टाइम लगता है. तो अगर कोई डिसीजन मुझे आज लेना है, उसका जो है उस डिसीजन का फ़ायदा मुझे आज पहुंचाना था लोगों को. ड्यू टू दिस ये कंसल्टेशन प्रोसेस इट डिलेज, तो उसका फिर वैल्यू नहीं होता है. बेवक्तुक चीज़ अगर बे के टाइम अनु तथ में रोज़ फ़ायदे कहीं. सो डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये जो कंसल्टेशंस होते हैं सर, इसकी वजह से डिले होता है. कंसल्ट, डेमोक्रेसी में कंसल्ट ज़रूरी है. एक बंदा इसमें डिसीजन कभी भी नहीं ले सकता, अपने बिहाफ पे वो नहीं ले सकता. हाँ, अगरचे वो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, बट आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू डिबेट एंड डिस्कस इट इन पार्लियामेंट, देन दे हैव टू टेक इट. ठीक है. तो अमिक मतलब क्या, अमिक मतलब वो ये कि डिले गसान, डिसीजन लेने में बहुत डिले होता है, जो कि बाकी में नहीं है. ठीक है ना. मगर अत वो पत एडवांटेज ब्याक.
تو ایک اور پوائنٹ, elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decisions. جو elected leaders ہیں, اگر اس کو لکھو گے بھی نہیں ایسے ہی سمجھو, elected leaders جو ہے نا کبھی کبھار in most of the cases they even do not know the best interests of the people. ان کو پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کے ہت میں کون سے کام ہیں, اور دیٹ مینس کہ وہ جب ڈیسیجنز لیتے ہیں نا وہ بیڈ ڈیسیجن لیتے ہیں. ایگزامپل میں دلی میں ابھی بھی وہ گورنمنٹ چل رہی ہے, عام آدمی وہاں پہ الیکشن ہو گئے تو اب رزلٹ آنے والا ہے, یا تو ایز پر دا ایگزٹ پول وہاں پہ بی جے پی جیت رہا ہے ایگزٹ پول کے اکارڈنگ. تو پھر بھی دیکھیں گے رزلٹ کے دن کیا ہوگا. کون؟ ہاں کیجریوال جی بہت اچھے لیڈر ہیں, اس نے سکولز وہاں پہ اچھے بنائے, ہاسپٹل, ایون جو فیمیل کے لیے اس نے اچھی وہاں پہ فیسلٹی رکھی ہے. ایون وہاں پہ وہ کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں چلیں گے نا فیمیل, ان کو کوئی فیئر نہیں دینا پڑتا تھا. تو دوسری بات اس نے جو غریب لوگ تھے ان کی الیکٹرسٹی بل پرہیپس 50% کرائے, تو بہت اچھے تھے, بہت اچھے کام کرائے. یہاں کی گورنمنٹ میں بھی نے بھی ہمیں سے کچھ پرومسز کیے ہیں, 12 گیس سلنڈرز پر ایئر دیں گے وہ, اور پلس وہ تو تھوڑا سینٹر کا, میں فی الحال اسٹیٹ گورنمنٹ کا بول رہا ہوں, یو ٹی گورنمنٹ. بولا گیا کہ 12 گیس سلنڈر فری دیے جائیں گے, پلس پرہیپس انہوں نے بولا تھا 200 یونٹس آف الیکٹرسٹی ہر ایک کو فری ملے گا. لیکن فی الحال کتنے ٹائم ہوا گورنمنٹ کو بنے ہوئے, 5-8 مہینے ہو گئے مے بی. چلو لیٹس ویٹ کہ کیا ہوگا. الیکشن مینیفیسٹو تو دیا نا, وہ وچھو نا گژھِ کن کہین نا پرومسز ہیں کہ بس ایسے ہی. تو یہاں پہ ایسے ہی سم ٹائمز دا الیکٹڈ لیڈرز ڈو ناٹ نو دا انٹرسٹ آف دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل. ہاں کیا نومبر سیشن پھر سے کیا, وہ کام تو اچھا کیا, وہ بھی تو ہے نا. اچھا ہاں بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا نا, یہ اچھا کیا, یہ بہت اچھا کیا, اسٹوڈنٹ کے لیے اچھا کیا نومبر سیشن. ہاں جو کام کیا ہوگا اس کو اپریشیٹ بھی ملنا چاہیے. تو ایک اور, ڈیموکریسی لیڈز ٹو کرپشن فار اٹ از بیسڈ آن دا الیکٹورل کمپٹیشن. میں نے ابھی ایک پوائنٹ لکھا تھا سر, ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے, الیکٹورل کمپٹیشن ہوتا ہے نا, الیکٹورل کمپٹیشن ہوتا ہے. صحیح بات ہے, الیکٹورل کمپٹیشن ہے سر. اگر الیکٹورل کمپٹیشن ہے دیٹ مینس الیکشن میں کمپٹیشن ہے, ایک پارٹی بول رہی میں ہی اور دوسری, سو یہ کیا کرتے ہیں, پیسہ روکڑا پھینکتا ہے, اور ساس دمو تو 300 ووٹ, جیسے پریکٹیکل دیکھتے نہیں ہیں, 2,000 دمو تو 3 ووٹ, پریکٹیکل نہیں دیکھتے, ادھر دیتے ہیں نا اڑین پائپ, اڑین کیا پکان سورے. سو اٹ لیڈس ٹو کرپشن, اٹ لیڈس ٹو, ہمارا یہ نا بھوک ہی ایسی ہے تو ہمیں اگزامپلس دینے پڑتے, کیا کریں گے اب. بات بابر اکوٹے پت یوت بات توت بابر. تو آرڈینری پیپل ڈو ناٹ نو وٹ از گڈ فار دیم, دے شوڈ ناٹ ڈیسائڈ اینی تھنگ. ڈیموکریسی کا ایک فالٹ جو کہ میں بھی سمجھتا ہوں, جو آرڈینری لوگ ہیں جن کو پالیٹکس کا اے بی نہیں پتہ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو ووٹ کس کو ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو کیا کرو گے آپ, جیسے انڈیا میں چلتا ہے, اور ایسا جو ریویل بھی ہو گیا ہے, وہ بس اس کے پیچھے پڑے ہیں, بوتل گشت من آسن, ٹھیک ہے نا, سچ بات ہے. تو الیکشن میں اس کو ہنسی آئی, سچ ہے نا راجستھان بھائی. تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ الیکشن کے ٹائم پہ جو بڑے نیتا ہوتے ہیں نا, یہ بہت سارے جگہوں پہ ہوا ہے, اس نے کہ من گنت ونا کیا, یہ سچ ہے. تو وہاں پہ الیکشن کے ٹائم پہ شرابن ہز ٹرک چھوان, شراب اکھ بوتل سہ بے دہن تراوان کاڑیو سان ووٹ تمس. تو آرڈینری لوگ اس کو ویلیو نہیں پتہ ہے ووٹ کا, وہ اس ایک شراب بوند کے لیے پورے ملک کو برباد کر دیتا ہے. سر اب اگر کسی پارٹی نے پیسے دیے لوگوں کو, ہاں اگر یہ ریویل ہو گیا تم چھن تراوان شراب ون زہن اپس, تم چھ دل آسان صاف. ہاں بابر پوچھا, یہ بابر چھنا آسان صاف, دادو مجھ چھنا آسان صاف, تو چھنا أنٛدۍ پٔکۍ ماحولس منٛز وٕچھان. پیسے جو ہے نا اگر دیے تو اس میں ووٹ نہیں ڈالا. بہت سارے یہ بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے پیسے لے کے کرتے ہیں صحیح کام, وہ اس ٹائم جھوٹ نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ اس ٹائم جھوٹ کبھی نہیں بولتے. تو
दिल छना साफ हाँ इसके बाद क्या सुना हाँ अगर अब हो गया रिवील कि इसने पैसे लिए और प्रूव भी हो गया, जब वो देते हैं ना वो सबूत नहीं छोड़ते हैं। हाँ आगो मानुन या वन यथ कन मे वो पान तुम शराब रटान पोस रटान, प्रूफ है मेरे आंखों, ये थोड़ी है मैं प्रूफ हूँ, प्रूफ है, कोई वीडियो है या कुछ है, ठीक है ना। जो तम वन रट बह रिश्वत कैमरा तले पाकिस्तान कन हंद पे, पाकिस्तान प्लेयर ना रटान रिश्वत सो आसिफ वासिफ अति कैमरा तले ये कैमरा अति रटन बदल जाए ना रटान फंसे ना तम कैमरा तक, तो तिमन कड़ आसान बराबर कतन रटन। तो ये हाँ ये यही है, इसमें करप्शन बहुत होता है, करप्शन इसमें बहुत होता है। आप देखो कि अगर आप देखोगे ना, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसमें, जो आपका एक चैप्टर आएगा इसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें हम देखेंगे कि कौन से लिमिट्स होते हैं इनके, कितना पैसा ये खर्च कर सकते हैं, खाली इलेक्शन के टाइम पे कितना पैसा है खर्च कर सकते हैं, और कितना करते हैं वो सीधे लगता है कि रूल्स की वायलेशन होती हैं। वहाँ पे हमें सीधे पता चलता है डेमोक्रेसी नाम की है, उस टाइम काम की कुछ नहीं है, और जो है ये रिटर्न डेमोक्रेसी, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होते इसमें। अगर हम इंडिया की ही बात करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम क्या क्या होता है। अच्छा बात ज़बान करने कहीं तो इलेक्शनस में जैसे जो ये तकरीर करने जाते हैं ना, मोदी जी जाएंगे, राहुल जी जाएंगे, एक दूसरे को वो वाले ना गंदे इल्ज़ाम नहीं देंगे या धर्म को लेके कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने तो खुद बोला धर्म के ऊपर, उसने हिंदू को उकसाया, बोला कि अगर मुसलमानों की हुकूमत आई तो ये आपके माँ बहनों के मंगलसूत्र भी भेजेंगे, सीधे बोला ये। उस पे हाँ अब देखो उस पे क्या करना था, इलेक्शन कमिश्नर को सीधे नोटिस करनी थी या कराना था इलेक्शन लड़नी बैन, क्योंकि धर्म के नाम पे थोड़ी मुसलमान चाहेगा, वो भी हमारे माँ बहन हैं, हम थोड़ी उनके मंगलसूत्र बेचेंगे, ऐसा तो बिल्कुल क्या करेंगे, ह्यूमैनिटी है कि ना, हिमाचल बेच के भी क्या मिलेगा उससे, ठीक है ना। तो ऐसे अच्छा ये किया क्या उसने, बैड पॉलिटिक्स, हिमाचल को वो समझ। अच्छा इससे क्या, इससे जो हिंदू लोग हैं ना वो भड़क गए, हाँ मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमानों को एक वोट भी नहीं देना है, दो हिंदूज को वोट, दैट मीन्स उसने वोट मांगे धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। आ रहा है समझ, होता है ना कि नहीं। मोदी जी को वोट किया इस बार, अच्छा पापा ने किया होगा, हाँ आप कहाँ करोगे भी। तो यही है, धर्म की पॉलिटिक्स खेलते हैं। वैसे ही यहाँ से कोई मुसलमान होगा वो बोलेगा अगर आपने हिंदू को वोट डाला तो मुसलमान खतरे में, ठीक है ना। धर्म के नाम की पॉलिटिक्स इलेक्शन कमिश्नर के रूल्स के अकॉर्डिंग, हाँ उसको एक रिटन कंप्लेंट निकली, एक्सप्लेनेशन निकली मोदी जी को, लेकिन पार्टी के नाम पे हमने वो तो इलेक्शन कमिश्नर के नोट्स में लाना है फिर, और वो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, तब तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। अब क्या ये कुछ प्राइम मिनिस्टर चे कुछ बसान जमा गुलसो कहाँ गुलसो छना चला। हाँ तो हाँ एक और मैंने बोला था ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है ना। ऑर्डिनरी लोगों को, ऑर्डिनरी लोग जो है ना, ऑर्डिनरी लोग, उन बेचारों को पता नहीं कि वोट का असल वैल्यू क्या है। ये शख्स बत वना वल्लाह, लेकिन ये है ना डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है ना, अगर ये इक्वालिटी नहीं होती ना, अगर बम ना रूलस में गोडनथ वन बस पोर्मुत लिखमुत गोड पर्मित लिखमित ती पोर्मुत लिखमित, अमिस पता है कम से कम वोट का वैल्यू क्या है, उसी को वोट करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ मत पता है। जो ऑर्डिनरी लोग हैं यम दुहकन 14 पोरन बिचार जमीनस मन पे तम नेरान तत त्रावान वोट कम सू, तो बस रेडियोस में जी बोजान ती, टीवीएस में जी बोजान ती, मीडिया भी जब खरीद के होगा वो वहाँ से वही बोलेंगे, है ना, सुनेंगे भी वही करेंगे। लेकिन उनको असल में रियल चीज़ों के पता होना चाहिए कि कौन सा हमें राइट्स देते हैं और कौन से राइट्स छीने जाते हैं। अगर इस चीज़ का, हाँ धर्म के नाम पे कभी वोट नहीं करना चाहिए, ये हमेशा मेरी एक ही है, धर्म के नाम पे वोट नहीं, आप काम के नाम पे वोट कीजिएगा। जब इंशाल्लाह आपका वोटिंग राइट होगा, आप देख लेना कि कौन सी गवर्नमेंट बेस्ट काम कर रही है आपके लिए। किसने, जैसे केजरीवाल जी के कुछ मैंने काम अभी गिनवाए, उसने स्कूल बनाए, दैट मीन्स फ्यूचर बनेगा।
उस इलाके का, बनेगा कि नहीं? उसने धर्म के नाम पे नहीं लड़वाया, दैट मीन्स उसने बच्चों को किधर भेजा? स्कूल। उसने नहीं बोला उनको तलवारें उठाओ और पत्थर उठाओ और बस मार्केट में जाओ लड़ो। बच्चे करेंगे वही जो हम उनसे बोलेंगे। जब हम उनको, अच्छा दिल्ली में एक ऐसा सिस्टम चल रहा है, ये तो मज़ ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ान प्राइवेट स्कूल्स में, है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में अब ज़्यादा पढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ और उतनी अच्छी एजुकेशन प्राइवेट में नहीं है जितनी गवर्नमेंट स्कूल में। तो कश्मीर के स्कूल ऐसे नहीं बन सकते हैं। ये तो वुचू तो ये तो आपका फादर क्या कर रहा है? गवर्नमेंट टीचर। आप कहाँ खुद पढ़ रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में। क्यों? फैसिलिटी भी नहीं है और उसको पता है एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश बन गया हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो हम उसको बेहतर नहीं कर सकते हैं। क्यों? एक जो गरीब का बच्चा बेचारा सरकारी स्कूल में वही जो पुरानी टाइप की एजुकेशन हासिल करेगा, फैसिलिटी भी नहीं होती है वहाँ पे, और यहाँ से अमीर लोग जो है हैव्स एंड हैव नॉट सोसाइटी में डेवलप होंगे, है ना। तो ये है ना समझना। अगर मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे भरोसा होना चाहिए अपने गवर्नमेंट स्कूल पे। मैं अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के खुद अपने साथ ले जाऊँगा। चलो मैं ये गवर्नमेंट की भी गलती है और टीचर्स की भी गलती है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट पॉलिसी की गलती है। पहले देखना है कि एजुकेशन सिस्टम में किसको हमें लाना है। क्या वो ये ना गवर्नमेंट सिस्टम से चेंज करन कुन पे। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से बच्चों का मुस्तकबिल बन जाता है। बच्चों का मुस्तकबिल बन गया तो एक कौम का मुस्तकबिल बन जाएगा। आप में से कल को कितने डॉक्टर होंगे, कितने IAS ऑफिसर होंगे, इंशाल्लाह कितने बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, ठीक है ना। अगर आप में कैपेबिलिटी है डॉक्टर बनने के लिए, अगर आप में है कैपेबिलिटी डॉक्टर बनने के लिए, आप काबिल होने चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, आप बन गए अगर आपने सही से एजुकेशन हासिल की। अब किसके हाथ में है? सबसे पहले मेरे हाथ में। अगर मैं आपको बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ, जैसे मैं अभी जो आपको समझा रहा हूँ ना, दिस इज़ मोरालिटी। इंशाल्लाह आपको इसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ करना। ये थोड़ी है साथ को कल को क्वेश्चन सुनाएंगे, ऐसा नहीं होता एजुकेशन से। ना मुझे क्वेश्चन आपको चाहिए संडे के दिन। तो वही ये सर ने बोला नहीं चाहे तो हम नहीं लिखेंगे, वो भी चाहे, लेकिन समझना है एजुकेशन एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ें लाइफ में ठीक करते हैं। छना गोबर करा मोजन अके ओत्र डॉक्टर अख एक जो नहीं ENT पेशेंट है कोई, जो फीमेल बेचारी ENT पेशेंट है, तमिस आशा सो कानस कत आशा सर्जरी, फाइल गई दोन अदले बदल, ठीक है ना। तमिस कत सर्जरी, फॉर एग्जांपल ये साइड तमिस सर्जरी, ठीक ना। ENT तमिस ENT सर्जरी, फाइल गई बेकी पेशेंट सज तमिस यूट्रस कर। सच अल्लाह, ये जम्मू कश्मीर की बात मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इसको डॉक्टर बोलूँगा? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। वो पेशेंट क्या करेगा? ओ सुना बस सोच तो वना अच्छा शायद सोपूर की बात है, सोपूर की बात। ये कुछ इसी वीक हुआ सईदा ने देखा है, तो ये इसी वीक हुआ है। आप देखो वो भी डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर को सबसे पहले एक मोरालिटी होनी चाहिए। युथी पेशेंट यी ना यह गमिस यिथ कन योर कत कर अति बालन डॉक्टर खेमुत करान ये करान ना, मतलब रूब करान करते हैं ना बहुत सारे डॉक्टर ऐसे। तो सबसे पहले हाँ बस वन सारी डॉक्टर डॉक्टर तिम तमो सच में पेशेंट ठीक होते हैं, ठीक है ना। मेरी मम्मा की सर्जरी थी, उसका जो डॉक्टर आया ना जिसने सर्जरी, वो इतने अच्छे हैं, मैं बोलूँगा उसका बहुत अच्छे। अल्लाह ताला करें तमिस पन्नस सरसे अयालस हिफाजत, क्योंकि उसने मेरी मम्मा को ठीक किया। यथे कन डॉक्टर यम लकट आसान, काले लगमित, तिम वुडान, तिम पख लगित, तिम मोरालिटी होनी चाहिए, है ना। एटीट्यूड तो ठीक है, डॉक्टर साहब एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन मोरालिटी है ना। पेशेंट बेचारा अपना ही ख़त्म गोड़े ख़त्म हॉस्पिटल में, पैसों की वजह से आधे ख़त्म, तो आधे इस बीमारी के डर की वजह से ख़त्म। लेकिन अब उनको दिलासा दे दो कम से कम, आशास ना कुर्मुत। तो देखो ये हमारी जो है समाज की सोसाइटी किसको बचानी है? आप लोगों को। कोई IAS ऑफिसर होगा, गरीब पे कभी जुल्म नहीं करना। कोई डॉक्टर होगा, पेशेंट पे जुल्म नहीं करना। पेशेंट को कस्टमर कभी नहीं समझना, पेशेंट को कस्टमर कभी नहीं समझना, पेशेंट को पेशेंट समझ लेना, गमज़दा, ठीक है ना। पेशेंट है ना डॉक्टर कस्टमर ही समझान। जैसे मैं ये जिमस मज कम बन अमिस कस्टमर, मैं इसे पैसे कमाऊँगा, डॉक्टर भी बोलता है कस्टमर आया मुझे। ये पेशेंट है बेचारा, CA है या बाकी चीज़ बाकी। चलो आज इतना ही, इधर इसको बंद कीजिएगा। हाँ कल इसको फिर एडवांटेज पड़ेगी, डिसएडवांटेज